Hello students, hope all are doing well. Okay, today I am going to continue the same chapter which I discussed in the previous class. Okay, that is capital structure. Okay, in the capital structure we discussed favorable financial leverage. Okay, so last I discussed about the favorable financial leverage, that is with the example. So today we continue with that unfavorable financial leverage. Okay, so let us see the example unfavorable financial leverage. Okay students, let us start the question. So here three situations are given. First total capital, and the first situation it is 50 lakhs, second situation also it is 50 lakhs, and third situation also it is 50 lakhs. Okay. Then equity capital 50 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs, that is under 50 lakhs, that is situation 1, 50 lakhs, 5 lakh shares at the rate of 10 each. Then situation 2, 40 lakhs, 4 lakh shares at the rate of 10 each. Then situation 3, 30 lakhs, 3 lakh shares at the rate of 10 each. Okay. Then come to the next debt. Under the first situation debt is nil, second situation debt is 10 lakh, and third situation debt is 20 lakh. And come to the tax rate, 30% under the first situation, that is 30% on earnings. Then second situation also it is 30% per annum, and third situation also it is 30% per annum, that is 30% tax on earnings. Okay. Then next on to the interest on debt, because already the company is having a debt. So interest on debt 10% in all the situation, that is 1, 2 and 3, all the situation 10%. Okay. Then come to the earning before interest and tax, which is known as a EBIT, EBIT, EBIT. Okay. Earning before interest and tax. So here earnings before interest and tax is 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, that is in the all situation 3 lakhs each. Okay. Okay, let us solve the problem, and we are solving the problem to know the earning per share. Okay, with the help of the earning per share only we are going to find out whether it is a favorable leverage or unfavorable leverage. Okay, as I said already, favorable leverage means the return on investment is more than the rate of interest. Okay, rate of interest on debt. The return on investment is more than the rate of interest on debt. Okay, then other thing here. We are took the example to know whether earning per share is increasing because of debt or not. Okay. Okay, let us solve the sum, and we'll see what is the answer. Okay. Okay, I'll start. First one is situation. Come to the situation. Here we have to follow the EPS. Okay, EPS, that is earning per share. Okay, so earning per share. First, to find out the earning per share, first we must know the EBIT, that is earning before interest and tax. Okay, so earning before interest and tax is 3 lakh, that is 3 lakh in every situation, that is each situation rupees 3 lakhs. Okay, rupees 3 lakh. Okay. Now, from the earning before interest and tax, we have to deduct the interest. Okay, so less interest. Okay, when there is a debt we have to deduct the interest to find out the earnings. Okay, so interest, now we have to see the rate of interest. Already I said that rate of interest is 10%. Okay, so rate of interest 10%. Under the first situation there is no debt. Okay, so they raise fund only from the equity share, so there is no debt, so because of that there is no interest on interest. Okay. Then come to the second situation. Under the second situation the debt is 10 lakhs. Okay, debt is how much? 10 lakhs. So 10% on 10 lakhs, the rate of interest is how much? 10%. Rate of interest is 10%. So debt is 10 lakhs. So 10% on 10 lakhs, how much? It is 1 lakh. 10% on 10 lakh is 1 lakh. Okay, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10% on 10 lakh. So debt हम लोग कितना raise किए हैं here? In the situation 2, the company is raising fund from the debt, that is 10 lakhs. Okay, so 10% on 10 lakh it is 1 lakh. Okay, now third situation the debt is 20 lakh. Third situation the debt is 20 lakh. So 10% on 20 lakh. 10% on 20 lakh, that is 2 lakhs. Okay. So here it is 2 lakh. So now you have to deduct this
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट को हम माइनस करेंगे फ्रॉम द अर्निंग. सो हियर इन द फर्स्ट कंडीशन देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, सो इट इज 3 lakh. Then come to the second situation, 3 lakh debt is that is interest is 1 lakh, so the balance is 2 lakh, and come here total earnings is 3 lakhs, 2 lakhs interest on debt, so the balance earning is 1 lakh. Okay, so now first thing is over, interest हम minus कर चुके हैं. So after deducting the interest, the earning is, first situation it is 3 lakh, second situation it is 2 lakh, and third situation it is 1 lakh. Okay. Okay, now with this earning before tax, we have to deduct the tax. So we know that the tax rate is 30%. Okay, 30% on the income. Okay, so 30%. So here 30% on 3 lakhs it is 90,000. Okay, rupees 90,000, and 30% on 2 lakh it is 60,000. Then 30% on 1 lakh it is 30,000, isn't it? Okay, so 90,000, 60,000 and 30,000. Okay, now you deduct this. Okay, so 3 lakh minus 90,000 it is 2 lakh 10,000, then 2 lakh minus 60,000 it is 1 lakh 40,000, then 1 lakh minus 30,000 70,000. So after deducting the tax, the amount is 2 lakh 10,000, 1 lakh 40,000 and 70,000. Okay, now this amount is known as earning after tax. This amount is known as earning after tax. Now we have to find out the earning per share. We have to find out the earning per share. Okay, so what is the formula for earning per share? Earning after tax divided by number of equity shares. Okay, earning after tax divided by number of equity shares. Okay, now we will find out for the first situation. This is earning is 2 lakh 10,000 divided by, see, earning is rupees 2 lakh 10,000 divided by number of equity shares, that is नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है फर्स्ट सिचुएशन में 5 लाख इक्विटी शेयर्स, क्योंकि 50 लाख हमारे पास था, सो 5 लाख इक्विटी शेयर्स. ओके, देन कम टू द सेकंड सिचुएशन, रुपीज 1,40,000 डिवाइडेड बाय, हियर द इक्विटी शेयर इज हाउ मच 4 lakh. ओके, सो 4 lakh इक्विटी शेयर्स. देन कम टू द थर्ड सिचुएशन, 70,000, that is rupees 70,000 divided by, here the equity share is 3 lakhs. Okay, okay, now we will find out the earnings per share. So after dividing this we will get 0.42. okay, after dividing this, that is 2 lakh 10,000 divided by 5 lakh, it is 0.42. then here 1,40,000 divided by 4 lakhs, it is 0.35, that is 0.35. and then third one 70,000 divided by 3 lakhs, it is 0.23. आप करके देख सकते हैं घर में. ओके, 2 lakh 10,000 divided by 5 lakhs आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर इज 0.42. then 1,40,000 divided by 4 lakh, it is 0.35. then 70,000 divided by 3 lakhs आपका 0.23. so ये समझ में आ रहा है, 5 lakhs, 4 lakhs and 3 lakhs are the number of equity shares. okay, 5 lakh, 4 lakh and 3 lakhs are the number of equity shares. now see here, हमको चाहिए था earning per share 0.42, 0.35 and 0.23. what is happening here,
सभी कंडीशन में आपका अर्निंग पर शेयर इज वेरी लो, दैट इज 0 पॉइंट में है, 0 पॉइंट दैट इज 42 पैसा पर शेयर में आपको कितना मिल रहा है अर्निंग 42 पैसे। सेकेंड वन में देखिए आपको 0.35 35 पैसे मिल रहे हैं एंड 0.23 आपको मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन बिकॉज आपका अर्निंग्स भी कम है। सो व्हेन द अर्निंग्स आर लेस एट द टाइम अगर आप डेप्ट को यूज करेंगे डेफिनेटली आपका अर्निंग पर शेयर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीजिंग सिचुएशन में ही रहेगा। ओके, so here it is proved that this situation is under the financial leverage, this is a unfavorable financial leverage. ओके और भी हम देखते हैं और हमें बोलना चाहिए कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ नॉट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे हम बताएंगे, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना होगा। सो विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता चल जाएगा वेदर दिस इज अ फेवरेबल और नॉट फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज। ओके, सो हियर रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करने के लिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप एवरी सिचुएशन में ईबिट आप फाइंड आउट करेंगे। ईबिट रहेगा आपके पास, ईबिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ईबिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ईबिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन एवरी सिचुएशन इट इज सेम। ओके, every situation, under the situation 1, under the situation 2, under the situation 3, each situation total capital is how much, 50 lakhs. Okay, so total capital is 50 lakhs and each situation total earnings also 3 lakhs, same hai. Okay, so it is 3 lakh divided by 3 lakh divided by total investment is how much, 50 lakhs into 100. Okay, okay, 3 lakh divided by 50 lakhs into 100 you will get 6%. Okay, 6%. So here the rate of interest return on investment is 6%. You see in this situation return on investment is 6% and interest on debt is 10%. Interest on debt is 10%. I already discussed that return on investment must be more than the interest on debt. Okay, return on investment must be more than the interest on debt, then only we can say that it is a favorable financial leverage. So in both condition it is not a favorable financial leverage or we can say that it is a unfavorable financial leverage. Okay, समझ में आया? प्रीवियस क्लास में हमने बताया आपको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, जिसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको ज़्यादा था और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका कम था। सो वो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज था एंड नाउ इट इज द अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, नेक्स्ट वी सी द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन टू द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सो it is very important in every organization that every financial manager has to take some basic points to decide anything. Okay, so here capital structure is also comes under that. It is very important one in the organization. Optimal capital structure जो है रहना ज़रूरी है. So every financial manager has to follow some factors or some points. On the basis of that only financial manager has to decide whether they have equity or debt or both mix and what is the proportion. Okay, so with the help of factors determining capital structure we'll see how we will maintain a capital structure. Okay, so under that first one is cash flow position. Okay, okay, first one is cash flow position. So in every organization the cash flow position is very important one, because with the help of cash flow position only we can know that we came to know that the company is having ability to repay the amount or not. Okay, so if you are having a debt then it is very important the organization must have enough cash inflow. Okay,
So enough cash inflow, that means to repay the principal amount or to pay the financial obligation, enough cash inflow is very important for an organization. So इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कैश फ्लो क्या है, कैश जनरेशन हो रहा है कि नहीं. अगर हम डेप्ट यूज करने के बाद कैश जनरेशन हो रहा है, बट हमें ये देखना चाहिए कि वेदर द कैश जनरेशन जो हो रहा है वो इतना इनफ कैश इनफ्लो हो रहा है कि नहीं कि हम जो इंटरेस्ट जो पे कर पाएंगे. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग द डेप्ट we have to pay interest. Okay, in case if the company or if the organization fails to meet the financial obligation, तो automatically क्या हो सकता है, the debenture holders क्या करेंगे, they can claim on the assets of the organization. To avoid this, the company must see first the cash flow position. If the company is having enough cash flow position, that is cash generation जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, then automatically company क्या कर सकते हैं, debit को employ कर सकते हैं. That means they can go for the debit to raise the funds, they can go for the debt. Okay, so enough cash flow जो है if the company is having enough cash generation, then it prefer what, debt. Okay, it prefer debt. Okay, क्योंकि कैश अगर आपके पास ज़्यादा आ रहा है, देन ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, यू आर एबल टू पे द इंटरेस्ट टाइमली. ओके, सो दैट्स वाई कैश अगर इनफ हो रहा है, कैश जनरेशन इज इनफ, देन यू कैन प्रिफर द डेप्ट. ओके, इन केस शॉर्टेज ऑफ कैश इज देयर, अगर आपके कैश क्या है, शॉर्टेज है. ओके, शॉर्टेज ऑफ कैश. ओके, कैश जनरेशन, अगर शॉर्टेज ऑफ कैश जनरेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, देन उन्हें ये देखना चाहिए, क्योंकि विद द शॉर्टेज ऑफ कैश आप क्या नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते. आप क्या नहीं कर सकते, इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हैं. आपको ये ध्यान देना होगा, अगर आप डेप्ट यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू पे इंटरेस्ट वेदर देयर इज अ लॉस और प्रॉफिट. ओके, सो इसलिए हमें ये देखना चाहिए, अगर शॉर्टेज ऑफ कैश होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिफर more equity in the capital structure. Okay, why? Because there is no financial obligation for the equity shareholders. That means equity shareholders को dividend हमें pay करना, it is not necessary when there is a loss. Okay, so अगर आपके पास shortage of cash is there, then automatically आप जो है loss में चल रहे हैं, तो at the time of loss आपको dividend pay करना ज़रूरी नहीं है. so यहाँ पे आप ऐसा situation में आप क्या कर सकते हैं, equity को जो है आपका capital structure में ज़्यादा raise कर सकते हैं. is that clear? so cash flow position आपको देखना होगा. under the cash flow position you have to see whether the cash flow is generating enough cash inflow or not. If enough cash generation is there, then you can prefer debt. If cash flow is shortage, then automatically you prefer more equity in the capital structure. Okay, then next हम देखते हैं second one, ICR. Okay, so what is ICR? It is denoted as interest coverage ratio. It is known as a interest coverage ratio. Okay, what is interest coverage ratio? So interest coverage ratio means, here we can say that number of time company is earning before interest, that is EBIT. Okay, and tax EBIT, the interest payment obligation. that means आपका जो EBIT है, okay, आपका EBIT कितना number of times interest जो है पे कर सकता है. okay, so आप जितना earnings या earn कर रहे हैं वो कितना times जो है आपका interest को पे कर सकता है, ये रेशियो आपको देखना होगा. सिंपल सा, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ऑब्लिगेशन, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन इज 10,000 रुपीज, योर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन. ओके, आप दैट इज यू हैव टू पे इंटरेस्ट
10,000 रुपीज़ एवरी ईयर। ओके, 10,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके, आपका अर्निंग्स है 10 लाख रुपीज़। आपका अर्निंग्स कितना है? 10 लाख रुपीज़। योर अर्निंग्स इज 10 लाख रुपीज़, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज हाउ मच? 10 लाख रुपीज़। नाउ यहाँ पे आपको देखना होगा, हियर यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज ICR इज इक्वल टू ICR is equal to that is EBIT divided by interest. EBIT divided by interest. Okay, what is your EBIT? It is 10 lakh. Your EBIT is 10 lakh and your interest is 10,000. Now आप यहाँ पे देखेंगे 100 times. आप कितना times आप दे सकते हैं? 100 times. Okay, से आपको समझ में आ रहा है? Your earning is how much? 10 lakhs. You have to pay 10,000. So आपका कितना हो रहा है? आपका that is ICR is 100 times. Okay, so आप क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं, easily पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस सिचुएशन आपको ये देखना है, अगर आपका ICR रेशियो मोर है, आपका ICR रेशियो इज मोर, हाई ICR। ओके, अगर आपका ICR रेशियो इज हाई, देन आप क्या कर सकते हैं? डेप्ट ज़्यादा ले सकते हैं। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट जो है आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। या अदरवाइज अगर आपका ICR लो दिखा रहा है, लो ICR है, तो आप क्या कर सकते हैं? इक्विटी पे जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डेप्ट यू कैन प्रेफर इक्विटी, और लेस बोरोड फंड में आप जा सकते हैं। ओके, और लेस बोरोड फंड में आप जा सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज EBIT जो है पेमेंट का ऑब्लिगेशन को कितना बार कवर करता है। ओके, द EBIT कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, कितना टाइम्स जो है वो कवर कर सकता है, ये देखते हैं। इन केस अगर आपका ICR हाई रहेगा, देन आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इन केस इफ योर ICR इज लो, देन आप क्या कर सकते हैं? आइदर यू गो फॉर इक्विटी और यू गो फॉर लो बोरोड फंड, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देने में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हैं? लेस बोरोड फंड में भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप इक्विटी में भी जा सकते हैं। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज DSCR। ओके, DSCR, हियर DSCR denote डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो, डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, so DSCR is one step ahead, okay, or we can say that it is the advance of ICR। क्या है? advance of ICR। why? ICR में हम लोग क्या देखे थे? इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज EBIT जो है कितना इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स जो है EBIT कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, दैट इज द ICR। नाउ DSCR क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट करना है एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। ओके, आपको ये देखना है कि DSCR कवर्स द ऑब्लिगेशन टू पे लोन, दैट इज प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, सो दोनों इंटरेस्ट भी एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपेमेंट कितना टाइम करता है, दैट इज कितना वो अर्निंग्स करता है, ये हमें देखना होगा। ओके, सो हियर DSCR कवर्स द प्रिंसिपल प्लस जो रीपेमेंट इंटरेस्ट अमाउंट एंड जो भी आपको रीपेमेंट करना होगा सभी अमाउंट को लेना है। ओके, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, नाउ हियर आपको ये देखना है DSCR, अगेन द सेम थिंग, DSCR अगर आपका हाई होगा, okay, DSCR ratio is high, then you can prefer what? Debt। okay, आप क्या prefer कर सकते हैं? Debt, that is organization can prefer more debt। okay, so more debt आप prefer कर सकते हैं। in case low होगा या less होगा तो आप क्या कर सकते हैं? कंपनी जो है debt को avoid करके अगर लेस होगा, DSCR लेस होगा, अवॉइड डेप्ट। ओके, अवॉइड
डेप्ट। ओके, डेप्ट अवॉइड करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिफर इक्विटी। आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी को प्रेफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? DSCR जो है वन स्टेप अहेड ऑफ ICR। ICR रेशियो में आप सिर्फ इतना देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज कितना टाइम जो है EBIT इंटरेस्ट कवर कर रहा है, वो आप देख रहे हैं। DSCR में आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट प्लस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये प्रिंसिपल अमाउंट को आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। सो नंबर ऑफ टाइम्स यूर EBIT इज रिपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ओके, या कवर्स द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ये देखना है। DSCR हाई होगा तो आप डेप्ट पे जाएंगे, दैट इज यू कैन यूज मोर डेप्ट। इन केस DSCR लेस होगा तो आप क्या करेंगे, डेप्ट अवॉइड करके इक्विटी शेयर को प्रिफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट फैक्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हियर ऑलरेडी हम देख चुके हैं व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना डेप्ट एंड इक्विटी को यूज़ करने के बाद आपको जितना इनकम मिल रहा है, सो आपको ये देखना होगा ये इनकम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट मस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। ओके, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी होगा इट इज मोर देन द डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। सो अगर आपके पास ऐसा होगा, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर, देन आप क्या कर सकते हैं, डेप्ट में जा सकते हैं। बिकॉज जितना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा आपके पास क्या होगा, एबिलिटी आ जाएगा कि आप रीपेमेंट करें। ओके, रीपेमेंट एबिलिटी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्हेन ROI इज वेरी लेस देन ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, वहाँ पे आप इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकते, रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है आपका। सो डेप्ट अगर आप लेते हैं तो एक फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगा। सो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न जो है आपको उतना मिलना चाहिए ताकि आप उसको रिटर्न भी कर सकें एंड कंपनी को स्मूथली रन भी कर सकें। ओके, सो इन केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर यू कैन प्रिफर डेप्ट। इन केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस है देन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिफर इक्विटी। बिकॉज इक्विटी में आपको डिविडेंड ही देना है एंड व्हेन देयर इज अ लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन वहाँ पे आप क्या नहीं दे सकते हैं, डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं है। सो आप मोर इक्विटी को प्रिफर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। Okay, next heading is cost of debt. Here cost of debt means a company, if a company can arrange borrowed fund at a lower rate of interest, then the company can prefer debt. Okay, more debt. That means अगर कंपनी जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोरोड फंड को अरेंज कर सकता है देन ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, वो मोर डेप्ट को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ हाई रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट रहेगा देन ऑटोमेटिकली हम क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा जो है डेप्ट नहीं रख सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास डेप्ट होगा तो वहाँ पर भी हमको पेमेंट करना होगा। देन अगेन एंड अगेन आप डेप्ट में जा रहे हैं देन ऑटोमेटिकली ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा। आप जो है पेमेंट नहीं कर सकते हैं देन ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट द कंपनी। सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है अगर आप लो कॉस्ट ऑफ डेप्ट रहेगा या यू कैन अरेंज लेस कॉस्ट फॉर बोरोड फंड देन आप क्या कर सकते हैं, मोर डेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह टैक्स रेट हम देखेंगे। टैक्स रेट ऑलरेडी ये हम डिस्कस किए हैं अदर दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस में, मोरलेस सेम ही है। सो टैक्स रेट ऑलरेडी आई सेड दैट टैक्स रेट हाई रहेगा तो आप डेप्ट यूज कर सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन में हम देखे थे टैक्स रेट अगर हाई रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, मोर डेप्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। इन केस टैक्स रेट इज लो, हाई टैक्स रेट पे आप मोर डेप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, मोर डेप्ट को यूज कर सकते हैं। लो टैक्स रेट होगा तो आप क्या करेंगे, इक्विटी को प्रिफर कर सकते हैं और अदरवाइज लेस बोरोड फंड को प्रिफर करेंगे। वाई सी टैक्स रेट, आप जानते हैं
डेप्ट जो भी हम ले रहे हैं, सो द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। ओके, सो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो भी है वो प्रॉफिट से डिडक्ट होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट इज योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ओके, सो जो अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, सो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट जो भी रहेगा उसमें से ही आप क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो आप जितना डेप्ट लेके रखे हैं उतना आप क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। सो हाई टैक्स रेट में इंटरेस्ट लेस होने के बाद बैलेंस जो अमाउंट बचेगा उसी में आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। अगर ऐसा नहीं करके आप इक्विटी में जाएंगे तो क्या होगा, you have to pay tax for your income as well as you have to pay tax for your dividend, whatever the dividend you paid for the equity shareholders. Why? शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड आप दे रहे हैं, ये डिविडेंड में जो टैक्स होगा वो आपको ही पे करना होगा, कंपनी को ही पे करना होगा, नॉट द इक्विटी शेयर होल्डर दोज हु आर रिसीविंग द डिविडेंड। ऐसा नहीं है। सो फॉर दैट आपको टैक्स से आपको बचना है तो आप क्या करेंगे, हाई टैक्स रेट में आप क्या करेंगे, मोर डेप्ट को यूज करेंगे। व्हेन टैक्स रेट इज लो यू विल गो फॉर इक्विटी। ओके, सो अदर देन दिस बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जो ऑलरेडी हम फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट है, देन रिस्क कंसिडरेशन इज देयर, स्टॉक मार्केट कंडीशन इज देयर। ओके, इसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज देयर। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक जो आपको सेबी से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है यू हैव टू फॉलो दैट आल्सो। देन कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स, कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स में भी आपको देखना है, इन केस शेयर होल्डर जो प्रीवियस इक्विटी शेयर होल्डर्स और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर holders are there, if they want their control continuously, तो वो क्या कर सकते, कंटिन्यूसली वो अगर अपना कंट्रोल चाहते हैं देन आप क्या कर सकते हैं, डेप्ट में जा सकते हैं, ना अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी में ही जा सकते हैं। ओके, सो आपको ये ध्यान देना होगा। सो ऑलरेडी हम ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर, ये सब हम क्या कर चुके हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इम्पोर्टेंट जो भी था वो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। ओके ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। होप यू अंडरस्टूड द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो जितना भी मैंने जो भी मैंने सम्स करवाई थी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस का, इस सम को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन का एग्जाम्पल के साथ में आपको लिखना होगा। सो टू सॉल्व दिस आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम।